गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टाइल तो बदलनी पड़े ना भाई, राइट। चलो, वी आर इन सेकेंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। देखो, स्टार्टिंग से मैं आपको बोलते आया हूं 11 से कि यूनियन मीन्स एडिशन, सॉरी यूनियन मीन्स और मीन्स एडिशन, इंटरसेक्शन मीन्स एंड मीन्स मल्टीप्लीकेशन। तो यूनियन मीन्स और मीन्स एडिशन का यूज तो हमने किया हुआ है, पर इंटरसेक्शन मीन्स एंड का यूज किया है, बट एंड मीन्स मल्टीप्लीकेशन वो आज करने जा रहे हैं भाई, वो आज यूज होने वाला है। सो दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। सो लेट अस स्टार्ट। Let A and B be two events. The probability of A, given B has occurred is denoted by P of C. Probability of A given B has occurred, B already occur हो चुकी है, तो उसके रिस्पेक्ट में A की प्रोबेबिलिटी डिनोट करें हम P ऑफ A बाई B से। तो P ऑफ A बाई B की फॉर्मूला है हमारे पास, देयरफॉर P ऑफ A बाई B इज दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर, नीचे वाला नीचे, एंड सेकेंड थिंग हियर B इज कंडीशन कैन नॉट बी इम्पॉसिबल event, so its probability will be non-zero। ये होना ही चाहिए। if B is impossible event, तो B के रिस्पेक्ट में A कभी अकर हो नहीं सकती। गेटिंग माई पॉइंट? चलो, अब यहां से मुझे सब्जेक्ट चेंज करना है। मैं P ऑफ B को सामने मल्टीप्लाई कर रहा हूं। सो P ऑफ A बाई B, P ऑफ A बाई B into P of B is P of A intersection B। अभी मैं P of A intersection B को सब्जेक्ट बना रहा हूं। सो P of A intersection B is P of A by B into P of B. P of A intersection B is P of A by B into P of B. This is called multiplication theorem for two events. Multiplication theorem for two events. Getting or not? तो देखो, this is the probability for occurring event A and B simultaneous. Intersection means and end means multiplication. Intersection means and end means multiplication. Getting or not? तो ये बात हो गई कि भाई A is occurring with respect to B. A is occurring with respect to B. अगर मैं ऐसा बोल दूं कि B is occurring with respect to A, तो result will be like this, see, and if P of B by A, so यहाँ पे A has occurred and B is occurring with respect to A, given that A has occurred, so P of B by A by the result, दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर, चाहे आप A इंटरसेक्शन B लिखो या B इंटरसेक्शन A, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, एंड
P of A is non-zero. Now multiply this P of A in LHS. So it will be P of B by A into P of A equal to P of A इंटरसेक्शन B. अब पूरा रिजल्ट घुमा के लिखो, उल्टा के लिखो, ऑर्डर चेंज करके लिखो. सो इट विल बी P of A intersection B is P of B by A into P of A. Getting my point? So this is the probability for occurring events A and B simultaneous. ऐसा भी बोल सकते हैं कि probability for A and B intersection means and. So मैं दोनों रिजल्ट कंबाइन करके ये रिजल्ट इस तरह से बना सकता हूं. Therefore P of A intersection B इक्वल टू, अगर B कंडीशन है मतलब B ऑलरेडी अकर हो चुकी है एंड A इज अकरिंग विथ रिस्पेक्ट टू B, देन इट विल बी P ऑफ A. कंडीशन हमेशा नीचे जाएगी और जो नीचे जाएगा वो मल्टीप्लाई होगा. इफ A इज कंडीशन देन A जाएगी नीचे, सो P ऑफ B बाई A, और जो नीचे जाएगा वो मल्टीप्लाई होगा. So this is the result for multiplication theorem for two events. Clear point? चलो multiplication rule for three events on probability. जैसे यहाँ पे हमारे पास दो events थी, like that यहाँ पे three events है. Let A, B and C be three events. Let A, B and C be three events. अब समझो कि भाई A के रिस्पेक्ट में अगर B और A एंड B के रिस्पेक्ट में अगर C अकर हो रही है, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि C इज अकरिंग, B इज अकरिंग विथ रिस्पेक्ट टू C एंड A इज अकरिंग विथ रिस्पेक्ट टू B एंड C. मे बी तो what will be the probability for occurrence of all three events simultaneous? अगर तीनों इवेंट्स एक साथ में अकर होती है तो what will be probability? तो देखो, let A is occurring, so its probability will be P of A. Now B is occurring with respect to A, so A will be condition for B, so वो हम लिख पाएंगे B by A. Now C is occurring with respect to A and B. अगर A and B दोनों अकर हो चुकी है, then C can occur. So उसकी probability होगी C by A intersection B. अब यही रिजल्ट मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना. चलो, A has occurred, so A is condition. Now C is occurring with respect to A and B is occurring with respect to A and C. ये भी हो सकता है, मे बी आप कौन सी इवेंट को क्या सपोज करते हो उस रिगार्डिंग ये रिजल्ट बनेगा. चलो P ऑफ A फर्स्ट है तो ऐसे दो रिजल्ट मिले, ऐसे दो रिजल्ट्स P ऑफ B के लिए और ऐसे दो रिजल्ट्स P ऑफ C के लिए मिलेंगे. C अगर P ऑफ B मतलब B is occurred with respect to B, C is occurring, and in the last A will occur with respect to B and C, so the statement will be P of A by B intersection C, or P of B into P of A by B into P of C by A intersection B, okay, equal to P of C into P of B by C into P of A by B intersection C. और एक और रिजल्ट बनेगा P of C into P of A by C
into P of B by A intersection C. The meaning of all these 6 results are same. आप क्या सपोज करते हो उसके रिगार्डिंग ये रिजल्ट बनेगा. आप एबीसी किस तरह से सिलेक्ट करते हो, ए के बदले बी, बी के बदले सी, सी के बदले ए, तो कुछ और चेंज हो जाएगा. मतलब एक ही रहेगा, सिर्फ फॉर्म चेंज होगा. सो दिस रिजल्ट्स आर नोन एज मल्टीप्लिकेशन रूल फॉर 3 इवेंट्स ऑन प्रोबेबिलिटी. मतलब ये होगा इसका कि ए, बी एंड सी आर अकरिंग साइमल्टेनियसली. अच्छा, साइमल्टेनियसली अकर हो रही है, स्टिल कंडीशंस विल बी देयर कि भाई ए अकर हुई तो उसके रिस्पेक्ट में बी. आफ्टर दैट सी इज अकरिंग विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी. सो व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी फॉर अकरेंस ऑल 3 इवेंट्स ए, बी एंड सी. तो ये रिजल्ट हम वहां पे यूज करने वाले हैं. क्लियर पॉइंट. चलो, लास्ट थियरी ऑफ दिस चैप्टर, इंडिपेंडेंट इवेंट. मतलब टोटली किसी पर डिपेंडेंट नहीं है. सो जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी थी, जो फर्स्ट टॉपिक था हमारा, वो था डिपेंडेंट इवेंट. कि भाई कोई एक इवेंट अगर अकर होती है तो उसके रिस्पेक्ट में व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेकेंड इवेंट अकरिंग विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट इवेंट. तो वो डिपेंडेंट थी. अब जो मैं बात कर रहा हूं वो है इंडिपेंडेंट इवेंट की. राइट. इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मतलब क्या होता है, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि डायरेक्ट इजीली वी कैन से दीज आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स. पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि लगे हमें डिपेंडेंट इवेंट पर हो इंडिपेंडेंट इवेंट. हाँ, उसका भी इलस्ट्रेशन मेरे पास है. तो देखो, सबसे पहले लेट ए एंड बी बी इवेंट्स. लेट ए एंड बी बी टू इवेंट्स. चलो, if A and B are independent, if A and B are events, then chalo, what does it mean? It means that A is occurring with respect to B. पर भाई एक और we are saying both are independent events. B चाहे अकर हो या न हो, उससे A को कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट. वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है. तो A की जो प्रोबेबिलिटी है वो B पर डिपेंड नहीं करती. मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ A. That's all. It is not depending on B. B को अकर होना हो तो हो, ना होना हो तो ना हो. A की प्रोबेबिलिटी को उसका कोई इफेक्ट होने वाला नहीं है. So P of A by B is P of A. और समझो P of B by A is P of B, then A and B are called independent events. अब यही रिजल्ट को मुझे मेन रिजल्ट में यूज करना है. लेट दिस मल्टीप्लीकेशन रूल फॉर 2 इवेंट्स. तो देखो, किसी एक रिजल्ट को बुलाओ, P ऑफ A इंटरसेक्शन B मीन्स प्रोबेबिलिटी फॉर अकरेंस ऑफ A एंड B साइमल्टेनियस. हाँ, तो सपोज B इज कंडीशन. इफ B इज कंडीशन, कंडीशन हमेशा नीचे जाएगी और जो नीचे जाएगा वो मल्टीप्लाई होगा. पर मैं ऐसा बोल रहा हूं कि नाउ सी, नाउ B इज नॉट कंडीशन बिकॉज A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स. इफ A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, सो A की जो प्रोबेबिलिटी है वो B पर डिपेंडेंट नहीं है, मतलब वो इंडिपेंडेंट हो गया ना. सो उसकी प्रोबेबिलिटी हमें डायरेक्ट मिलेगी. सो P ऑफ A
into P of B. So when P of A intersection B, when P of A intersection B is P of A into P of B, then the events A and B are called independent events. Then A and B are called independent events, right? A and B are called independent events. देखो एक इलस्ट्रेशन मैं आपको ऐसा देता हूं कि जिसमें फीलिंग आएगी डिपेंडेंट इवेंट की, पर रियल में वो इंडिपेंडेंट इवेंट है। ये तो आपने सुना ही होगा, द क्रॉस सीट एंड स्टॉक्स फॉल। जैसे ही कौवा बैठा, डाली टूट गई। पर ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में क्या था कि भाई उसकी लाइफ ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी थी डाली की, उसका एंड ही था, वो टूटने ही वाली थी। एट पर्टिकुलर दैट मोमेंट जो क्रो था, जो कौवा था, वो वहां जाके बैठा, तो हमें ऐसा दिखाई दिया, दोनों इवेंट साथ में मिलके पूरा पिक्चर ऐसा दिख रहा है कि जैसे ही कौवा बैठा डाली टूटी। मतलब हमें तो ऐसा ही लगा कि भाई ये इसके बैठने से हुआ, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। तो कुछ इवेंट्स ऐसी भी होती है कि जो हमें लगे डिपेंडेंट, पर रियल में वो इंडिपेंडेंट होती है। तो सम्स के अंदर हमें थोड़ा सा अपना लॉजिक यही लगाना है कि अगर आपने ऐसा सोचा कि भी मैंने यहाँ पे दो इवेंट्स बना दी, लेट ए इज व्हाट, द क्रॉ सिट्स, बी स्टॉक्स फॉल। अब सोचो कि भाई जो डाली थी वो टूटने की वजह हमें क्या लगी कि भाई कौवा बैठा इसलिए। इट मीन्स व्हाट कि B इज अकरिंग विथ रिस्पेक्ट टू A। इफ A हैज अकर्ड देन B इज अकरिंग। पर रियल में क्या ऐसा है, क्या B की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे A पर डिपेंडेंट है? बिल्कुल नहीं है, बिकॉज B इज टोटली इंडिपेंडेंट इवेंट। हमें भले ही ऐसा लगा, हमने भले ऐसा देखा, पिक्चर भले ही ऐसा बना, सिनेरियो भले ऐसा हो कि ये लग रहा है, पर वो लग रहा है नहीं। सो सम्स में हमें यही चीज फोकस करनी है कि कभी कभी ऐसा लगेगा कि इवेंट इज इंडिपेंडेंट, पर वो इंडिपेंडेंट भी हो सकती है। क्लियर पॉइंट? सो दिस इज द बेस्ट illustration for this independent event, the cross-seट and stocks fall। तो ये इजी इलस्ट्रेशन है, हर कोई इसे जानता है। अब यहाँ पे इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए भी हमारे पास दो केसेस है इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए। चलो यहाँ पे दो केसेस है इंडिपेंडेंट इवेंट्स में, पेयरवाइज इंडिपेंडेंट एंड म्यूचुअली इंडिपेंडेंट। So first, let A, B and C be three events. If P of A intersection B, this is the property of the independent event। इंटरसेक्शन मीन्स मल्टीप्लीकेशन, जो स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा कि जैसे यूनियन मीन्स और मीन्स एडिशन, इंटरसेक्शन मीन्स एंड मीन्स मल्टीप्लीकेशन। सो रिमेंबर इट, राइट? लेट P of A intersection B is P of A into P of B। P of B intersection C is P of B into P of C। P of C intersection A is P of C into P of A। Then A, B, C are pairwise independent
events. A, B, C are called pairwise independent events. Let A, B and C be three events if P of A intersection B equal to P of A into P of B, P of B intersection C is P of B into P of C, P of C intersection A is P of C into P of A, and P of A intersection B intersection C is P of A into P of B into P of C. Then A, B, C are called mutually independent events. Mutually independent events. क्लियर? सो ये अगर ये सिर्फ थ्री कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, फोर्थ नहीं हो रही, तो हम इवेंट्स को बोलेंगे पेयर वाइज इंडिपेंडेंट। पर साथ साथ में अगर फोर्थ कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, देन वी विल से म्यूचुअली independent event. So today all theories of this chapter finish हो रही है. Not only of this chapter, मैं ऐसा बोल रहा हूं कि पूरे सिलेबस की थियरी आज खत्म हो रही है. Clear point? So please write down this. चलो exercise 13.2 and the first question very easy. टॉय खिलौना पूछा भी नहीं जा सकता किसी एग्जाम में ऐसा समय. सी इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 3/5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 1/5, फाइंड पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स. अच्छा, इंडिपेंडेंट नहीं होता तो मल्टीप्लीकेशन रूल लगता, राइट? इंडिपेंडेंट है इसलिए हम क्या लिखेंगे हियर, पी ऑफ A intersection B. Whenever A and B are independent event, the result will be P of A into P of B. Okay, what is P of A? P of A is 3/5. What is P of B? That is 1/5. 3 1s are 3, 5 5s are 25 over and out. इतना बड़ा सम था. बोलो. चलो सेकेंड क्वेश्चन. ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, क्योंकि अगर समझे बिना सम किया तो कुछ और ही आप ढूंढ लाओगे. गेटिंग माय पॉइंट? चलो सी. 2 cards are drawn at random and without replacement from a pack of 52 playing cards. मतलब 2 कार्ड्स हमें सिलेक्ट करने हैं. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट both the cards are black. भाई ये विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि मान लो कि एक बॉक्स में मेरे पास एक रेड, एक ब्लैक, एक वाइट और एक ग्रीन बॉल है. अब मुझे यहां से 2 बॉल सेलेक्ट करने हैं विदाउट रिप्लेसमेंट एंड विथ रिप्लेसमेंट में, ये आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं. चलो पहले विथ रिप्लेसमेंट मुझे 2 बॉल सिलेक्ट करना है. मैंने फर्स्ट बॉल सिलेक्ट किया, उसका कलर नोट डाउन कर लिया, उसको वापस रखा,
तो वापस टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 4 हो जाएंगे। अब मैं बॉल सिलेक्ट कर रहा हूं सेकेंड टाइम, तो जो फर्स्ट इवेंट अकर हो चुकी है उसकी यहाँ पे कोई इफेक्ट होने वाली नहीं है, क्योंकि सैंपल स्पेस वापस ऐसा का ऐसा ही हो गया। तो जो पहले सिलेक्ट हुआ था वो बॉल भी वापस सिलेक्ट हो सकता है। मीन्स फर्स्ट इवेंट इज नॉट अफेक्टिंग टू द सेकेंड इवेंट, मीन्स दे आर इंडिपेंडेंट इवेंट। तो समझ लो कि जो सैंपल स्पेस है अगर उसके जो एलिमेंट्स है वो चेंज नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि इवेंट्स इंडिपेंडेंट होती है। जैसे आप कॉइन को टॉस करो, मुझे रिजल्ट मिला H, अब वापस मैं कॉइन को टॉस करूंगा तो भाई सैंपल्स में स्पेस में तो H और T ही रहेंगे। तो सेकेंड टाइम टॉस करने से जो इवेंट होगी वो फर्स्ट पर डिपेंडेंट नहीं है। अगर मैंने एक डाई को थ्रो कर दिया, मुझे रिजल्ट मिला 3, अब सेकेंड टाइम मैं डाई को थ्रो कर रहा हूं तो सेकेंड टाइम भी मुझे 3 मिल सकता है, मतलब वो रिप्लेस विदाउट रिप्लेसमेंट हो गया। अच्छा, अब समझो कि यहाँ पे विथ रिप्लेसमेंट हो, सॉरी विदाउट, ये विथ रिप्लेसमेंट था। विथ रिप्लेसमेंट में इवेंट्स इंडिपेंडेंट होती है, बट अगर मैंने विदाउट रिप्लेसमेंट बात कर दी तो चलो यहां से मैंने एक बॉल सिलेक्ट किया, सपोज इट इज वाइट बॉल। अब मुझे विदाउट रिप्लेसमेंट स्टडी करनी है तो उसको मैंने रखा साइड में। अब सैंपल स्पेस में कितने बॉल हो जाएंगे 3, और अगर मैं वापस सेकेंड टाइम बॉल सिलेक्ट करूंगा तो वो कभी वाइट होगा ही नहीं अगर फर्स्ट बॉल वाइट है तो। अगर फर्स्ट बॉल रेड सिलेक्ट हुआ तो सेकेंड टाइम रेड नहीं होगा, अगर ब्लैक हुआ तो सेकेंड टाइम ब्लैक नहीं होगा। मतलब जो सेकेंड इवेंट है वो फर्स्ट के, समझे ना, फर्स्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। फर्स्ट अगर अकर हो चुकी है तो बी की जो प्रोबेबिलिटी है इट विल बी डिपेंडेंट ऑन द फर्स्ट इवेंट, मींस दीज आर कॉल्ड कंडीशनल इवेंट। और अगर आप विथ रिप्लेसमेंट करोगे तो कोई कंडीशन नहीं बनेगी, ऑल विल बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स। सो आपको ये बराबर माइंड करना है कि विथ रिप्लेसमेंट का मतलब इनडायरेक्टली होता है कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स, एंड विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब होता है कि डिपेंडेंट इवेंट्स, मींस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वहां पे आएगी। अब पूरा टॉपिक आपका को रिलेटेड है तो आपको समझ में आएगा। सो लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। सी, आपको इवेंट यहां पे सपोज करनी है, आपको 2 कार्ड यहां से ड्रॉन करने हैं। इवेंट ए, फर्स्ट drawn card is black. Second event, second drawn card is also black. Total number of cards 52. अच्छा, से फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी में यहां पे ला रहा हूं P of A. चलो, हाउ मेनी ब्लैक कार्ड्स वी हैव? सो इन पैक ऑफ कार्ड्स, डेक ऑफ कार्ड्स, वी हैव 52 कार्ड्स। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52, एंड वहां पे उसमें ब्लैक कलर्ड होंगे 26 और रेड कलर्ड होंगे 26। ये सब आपको पता है। तो अगर सिलेक्टेड कार्ड ब्लैक है तो मुझे 26 में से एक सिलेक्ट करना है, 26C1 upon total number of elements of sample space we have 52 cards, so 52C1 ये बनेगा इक्वल टू 26/52 means it will be 1/2. So this is the probability for the card is black, selected card is black. Now for the second event, अब ये जो हमारा स्टडी है दैट इज विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब जो ब्लैक कार्ड मेरे हाथ में आया वो वापस
पैक ऑफ 52 कार्ड्स में नहीं रखना है, तो अब वहां पे वो पैक में, वो डेक में 51 कार्ड्स ही बचेंगे, क्योंकि मैं वापस नहीं रख रहा हूं। सो जो फर्स्ट इवेंट अकर हो चुकी है उसकी इफेक्ट सेकेंड इवेंट पे आएगी आएगी आएगी, बिकॉज इट इज डिपेंडेंट इवेंट। नाउ सी, एक ब्लैक कार्ड ऑलरेडी मैंने सिलेक्ट कर लिया। अगर एक कार्ड मैंने सिलेक्ट कर लिया है ब्लैक कार्ड, तो अब ब्लैक कार्ड्स बचेंगे 25, तो उसी में से मुझे एक कार्ड सिलेक्ट करना है अपॉन टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 51C1, so equal to 25 upon 51। तो अभी देखो, what is the question? Probability that both the cards are black, मतलब ये हुआ कि फर्स्ट कार्ड ब्लैक एंड सेकेंड कार्ड ब्लैक, so this is multiplication rule. Both the cards black means first card black and second card black. एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है, अभी अभी स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था, बट ये तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, एंड इस कंडीशन हमेशा नीचे जाएगी, और जो नीचे जाएगा वो मल्टीप्लाई होगा। नाउ पुटिंग द वैल्यूज, P of B by A is 25 upon 51 into P of A is 1 by 2, so the final answer will be 25 upon 51 twos are 102. So this is the probability for both the cards are black, for both the drawn cards are black. Clear point? चलो क्वेश्चन नंबर 3। अब बॉक्स, देखो क्वेश्चन बराबर समझना नहीं तो फंसे। A box of oranges is inspected by examining 3 randomly selected oranges drawn without replacement। मतलब एक ऑरेंज मैंने निकाली, उसको एग्जामिन किया, साइड में रखी, अब दूसरी लेनी है, उसको भी एग्जामिन किया, साइड में रखी, तीसरी लेनी है, एग्जामिन किया, साइड में रखी। दिस इज द स्टडी, राइट, विदाउट रिप्लेसमेंट। इफ ऑल 3 ऑरेंजेस आर गुड, अगर तीनों सही है, तीनों अच्छी है, इफ ऑल 3 ऑरेंजेस आर गुड, द बॉक्स इज अप्रूव्ड फॉर सेल। तो देखो, अब सेल के लिए अप्रूव करना मतलब 3 ऑरेंजेस अच्छी होना, गुड होना। सो इफ ऑल 3 ऑरेंजेस आर गुड, द बॉक्स विल बी अप्रूव्ड फॉर सेल। अदरवाइज इट इज रिजेक्टेड, मतलब डाल दो इसे गार्बेज में या कहीं भी। Find the probability that a box containing 15 or find the probability for box will be approved for sale। Actually ऐसा है, a box containing 15 oranges, out of which 12 are good and rest 3 are bad ones। तो ये 3 खराब है और 12 अच्छी है, तो मैं इसे ऐसे लिखूंगा, सी इट इज अ बॉक्स containing 12 good oranges and 3 bad oranges. Total we have 15 oranges। अब मुझे इसमें से 3 oranges without replacement select करनी है। See, a box of oranges is inspected by the examining 3 randomly selected oranges। हाँ, तो चलो, ए सिलेक्टेड फर्स्ट ऑरेंज इज गुड, फर्स्ट ऑरेंज इज गुड, सिलेक्टेड फर्स्ट ऑरेंज इज गुड। मुझे तीनों अच्छी सिलेक्ट करनी है, सिर्फ उसी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तभी तो वो बॉक्स सेल के लिए अप्रूव होगा। सो सिलेक्टेड फर्स्ट ऑरेंज इज इवेंट ए, selected first orange is good, selected first orange is good। B, selected second orange is good
and event C selected third orange is also good. अब देखते रहना, इनिशियली दिस इज द पोजीशन ऑफ द बॉक्स. चलो इवेंट ए अकर हो चुकी है ऐसा समझ लो. सो व्हाट विल बी इट्स प्रोबेबिलिटी. मुझे यहां से एक अच्छी ऑरेंज सिलेक्ट करनी है. देन व्हाट विल बी प्रोबेबिलिटी. सो वी हैव 12 गुड ऑरेंजेस. अगर उसमें से मैंने एक सिलेक्ट की and total number of sample space means total number of oranges are 15C1, so it will be 12 by 15. 3 4s and 3 5s. So this will be the probability. Now after occurring event A, the position of box will be what? See, because it is without replacement study, यहाँ पे जो ऑरेंज मैंने सिलेक्ट की है उसको वापस रखनी नहीं है. सो द पोजीशन ऑफ बॉक्स विल बी 11 गुड एंड 3 बैड. टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस विल बी 14. तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस चेंज हो गया. इट मीन्स दैट जैसे ही बी अकर होती है तो फर्स्ट की उस पर इफेक्ट रहेगी, वो कंडीशन बनेगी, याद रखना. सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी will be like this because B is affected by A. So A is condition. A is condition. तो B की probability क्या होगी? C. A अकर हो चुकी है. So this is the position. अब इसमें से मुझे वापस good orange select करनी है. For that the probability will be 11C1 upon total number of oranges is 14C1. So its probability will be 11 by 14. Now C is also occurring और A और B दोनों की उस पर इफेक्ट होने वाली है. Now see A and B both has occurred. अब उसके रिस्पेक्ट में C को अकर होना है, उसके रिस्पेक्ट में C को अकर होना है. A and B तो अकर हो चुकी है, तो पोजीशन ऑफ द बॉक्स विल बी लाइक दिस. अब एक और अच्छी ऑरेंज सिलेक्ट हो चुकी है तो हमारे पास 10 बची. खराब वाली तो 3 है. सो टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस 13. अब सी इज अकरिंग, तो सी पर ए और बी की इफेक्ट होने वाली है बिकॉज द नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आर चेंजिंग. इट मींस दीज आर कंडीशनल इवेंट्स और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. चलो अब यहां से एक और अच्छी ऑरेंज सिलेक्ट करो. सो प्रोबेबिलिटी विल बी 10C1 अपॉन 13C1 is 10 by 13. तो क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी फॉर द अप्रूव फॉर सेल. बॉक्स इज अप्रूव्ड फॉर सेल. अगर बॉक्स को अप्रूव करना है तो ऑल 3 ऑरेंजेस शुड बी गुड. तो देखो मतलब तीनों इवेंट साथ में अकर होनी चाहिए. सो फर्स्ट ऑरेंज इज गुड एंड सेकेंड शुड बी गुड एंड थर्ड शुड बी गुड. तो ये तो कंडीशनल इवेंट्स है. तो इसका जो रिजल्ट बनेगा देखो, सबसे पहले ए अकर हो चुकी है. अब बी इज अकरिंग विद रिस्पेक्ट टू ए, सी इज अकरिंग विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी. सो ये जो 6 रिजल्ट्स हमारे पास थे उसमें से ये वाला यहां बन रहा है. सबकी वैल्यूज हमारे पास है. चलो P of A is 4/5, P of B by A that is 11/14, P of C by intersection B is 10/13, 5 to 10, 2 7 14. तो बचा क्या? 11 4 44 upon 13 7 91. So this is the probability for all 3 oranges are good or the box is approved. Clear point? चलो क्वेश्चन 4. A fair coin and unbiased die are tossed simultaneous. So what will be sample space? A fair coin means the sample space for the coin is HT, and unbiased die it will be 1 2 3 4 5 6. So total number of element 2 6 are 12
इट हैज 12 एलिमेंट्स। कौन से एलिमेंट्स आएंगे? सी H1, H2, H3, H5, H6, T1, T2, T3, T5, T6, all 12 elements you know, no need to write. Clear? अभी क्या करना है? Let A be the event head appears on the coin. अब इवेंट ए के लिए हमें क्या बोला है कि भाई कॉइन पे हेड होना चाहिए, तो चलो मैंने हेड ही ले लिया, हेड ही ले लिया, राइट। अब डाई के लिए कुछ भी नहीं कहा है, नो कंडीशन, सो एनी रिजल्ट में भी। सो 6 1 जा 6, ये जो इवेंट है उसके जो एलिमेंट्स आएंगे वो 6 आएंगे। एंड विच 6 एलिमेंट्स विल बी देयर? H1, H2, H3, H6, यहां तक जाना है। ओके, नाउ व्हाट इज कंडीशन फॉर बी? इवेंट बी इज व्हाट? बी बी द इवेंट 3 ऑन द डाई। अब बी के लिए, डाई के लिए कंडीशन दे रखी है, कॉइन के लिए कुछ भी नहीं कहा है, तो कॉइन का तो कोई भी रिजल्ट हो सकता है, बट 3 शुड बी ऑन डाई, 3 मस्ट बी ऑन डाई, वही हमारी इवेंट है। सो 3, देन 2 1 जा 2, सो एलिमेंट्स ऑफ बी बनेंगे 2। अब जब डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, कंडीशनल जो भी प्रोबेबिलिटी लानी हो, इंटरसेक्शन तो वहां पे होना ही चाहिए। सो वी विल फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। अब दोनों में हो ऐसे कॉमन एलिमेंट्स कौन से है? देखो यहाँ पे H1 से लेके H6, H3, T3, तो T वाला तो यहाँ पर कोई है ही नहीं, H वाले है बट इट हैज ओनली H3, H3 इसके पास भी है, सो ओनली H3 विल बी द कॉमन एलिमेंट, H3। सो ए इंटरसेक्शन बी में एलिमेंट्स आएंगे 1 ओनली। अब हमें क्या चेक करना है? चेक वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स और नॉट। इंडिपेंडेंट इवेंट की जो प्रॉपर्टी है कि इंटरसेक्शन मींस मल्टीप्लिकेशन, वो हमें चेक करनी है। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, number of elements of event upon total number of elements of sample space, so it is 1 by 12. And P of A, what will be P of A? Number of elements of event 6, total number of elements sample space 12, so 1 by 2. P of B, P of B, that is 2 by 12 will be 1 by 6. अब इंडिपेंडेंट इवेंट की जो प्रॉपर्टी है वो मैं चेक करने जा रहा हूं नाउ। P of A into P of B, चलो व्हाट इज P of A? that is 1 by 2. What is P of B? that is 1 by 6. So its answer is 1 by 12, which is equal to P of A intersection B. Yes, done. It's being property of independent events यहाँ पे satisfy हो रही है कि P of A intersection B is P of A into P of B. It means that A and B are independent event. Therefore, A and B are independent events. Clear point? So आज का लेक्चर मैं यहाँ तक रखता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में we will start from the 5th question. तब तक के लिए see you, bye bye, टाटा।